et ben quelque chose qui ont pour nous al fait amal Allah donne nous tawfiq lola. Moi plutôt être franc, moi habitué d'y aller. À cause ça, mon Dieu, profitez avec ben là votre présence, oui, mais profitez plus avec votre connaissance. Vous connaissez beaucoup subhanallah boina. Nous habitués d'y aller, alhamdulillah, de contentement nous dire ça aussi. Mais subhanallah là quand nous peut dire, faudrait quand nous sortions nous vînes mashallah. Pas quand ben Hazrat peut retourner dans notre pays, pas pour du tout de masjid là, disparaître le map. Non. Nous pas là pour montrer visage Hazrat, non. Nous là pour rassurer que quand votre présence peut venir là parmi nous, les papes viennent David, quand vous pouvez sortir là, vous pouvez aller, sa partie connaissance là, Inch'Allah, nous vous bénéficiez avec ça. Nos enfants, nous n'avons pas pour se bénéficier. Alhamdulillah, vous tenez à remercier ben aïmma ben ulama qui l'a parmi nous. Et nous faisons doa Allah préserve nous ben ulama. Allah donne barakat de notre connaissance. Allah fait nous bénéficier avec notre connaissance, Inch'Allah. Nous débutons avec adab, nous ben mehman khusousi fin déjà arrivé. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Narae takbir, narae takbir, narae risalat, narae risalat. Ulama ahlus sunnah, huzur ashraf millat, huzur ashraf millat, huzur mujahid islam. Ulama ahlus sunnah. Mashallah, ahlan wa sahlan. Ouvert Coran, ouvert 39e surah, porte le nom surah Az-Zumar, qui nous dit Az-Zumar, 39e surah du Coran. Où il y a son 9e ayat, 39 verset 9. Allah pose une question de cette ayat-là. Et Allah pose cette question-là à travers la bouche Mubarak Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit Umm Mahboub, dis avec ta umma. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Pose une question. Question là, il direct. Allah dit Umm Mahboub, demande avec ben là. Est-ce qu'il y a un démon qui est dans la connaissance et qu'un démon qui paye dans la connaissance de pareil? Réponse là qui était non. Non. Donc, ben là, on dit avec un maqsad. Mon Dieu, dès l'occasion, on peut gagner. Un fait d'idar de sa personnalité là. Nous faisons doa, Allah, que nous autres doa, tant que nous parmi nous, profiter de la faire doa pour nous, parce que sa personnage, nous doit la faire koboul ça. Déjà, mon Dieu, c'est qui est plus important, pas oublier lui. Nous pouvons assis là, parce que nous venons pour en prendre avec sa ulama là. Et c'est ben ulama qui ont gagné barakat ilm Hazrat Ali radiyallahu an. Juste comme une motivation pour qu'il kawasi là ou pas dormir pas cascou. Un parmi ben sahabi qui a une leçon pour nous, Hazrat Jabir bin Abdullah radiyallahu an. Beaucoup d'années après wafat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les gars nouvelles et un sahabi encore vivant à l'époque là, mais seulement lui de la Syrie. Et Hazrat Abdullah, Jabir bin Abdullah, les périsses de Madina Munawwara. Il dit à mon asté un chameau. Il a acheté un chameau. Il dit à mon monte l'eau ce chameau là, mon voyagé pendant un mois. Pour me réussir arrive jusqu'à la Syrie. De Moulke Sham. Et il dit à mon là-bas, mon alroud l'adresse à sahabi là, Abdullah ibn Unais radiyallahu anhu. Un sahabi qui tient à l'époque là. Hazrat Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu dérangé les voyageurs, les vignes jusqu'à la Syrie, les vignes devant la porte, ce sahabi là, il tape la porte. Ce sahabi là sur khadim ouvert. Jamais ne trouve ça démon là, pas qu'on lui-même qui s'en là. Demandez qui s'en là où. Hazrat Jabir dit allant dans
Dia tu propriétaire, dia Abdullah bin Unais, Jabir bin Zwanli. Sa khadim la ratada, li ale li dia o Abdullah bin Unais, enen jimun devant la porte in bin Zwanli, mo pas kon li ki sana zame mon trouve li pede appelle Jabir lin vini pour Zwanou. Asti sa sahabi la pe imaginem. Li pe penser be qui Jabir ça? Li pe penser, ça ne vient de sous la bouche en coûte. Li dit avec ce khadim, check en coûte, pas Hazrat Jabir bin Abdullah qui vient coûte mola. Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu. Khadim la सोची जली ऊ किसान ना की जाबिर हुए थे ले जा अल जली जाबिर बिन अब्दुल्लाह बिन देवा सुलापोत सहाबी ला सोची कुमले तो हज़रत जाबिर रदियल्लाहु अन्हु माइली द मोहब्बत parce qu'après belle l'époque je peux joindre les jali on vient là devant la porte ko tu sochi depuis ko ça Hazrat Jabir dit mon asti en chameau mon voyage là pendant un mois pour me capable venir jusqu'à devant la porte parce qu'il y a un hadith pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui valait 10 jours juste toi et moi tout seul qui connais ça juste toi et moi connais ce hadith là un hadith comment hadith vous voyez un hadith juste moi et toi qui connais ça moi venir pour confirmer ce hadith là avec toi un long hadith ça c'est qui n'importe là aussi Allah sur Rasul tu peux cause concernant Yawmul Qiyamah Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit ben sahaba comme un avertissement pour nous pas penser que Qiyamat les mots l'étape facile non pour les 20 démons au Qiyamah nu pas pour la linge loli déjà Nabi Karim dit hadith là pour les 20 démons Yawmul Qiyamah sans qui pour même pouvoir faire khatna là aussi pas pour faire et troisième Nabi Karim dit pour les 20 démons dans l'état solamé pour vide et Allah sur Rasoul dit aucun habitant Jahannam pas pour rentrer dans Jahannam aussi longtemps qu'il pas fini régler compte avec mon habitant Jannah et ben habitant Jannah pas pour rentrer dans Jannah aussi longtemps qu'ils ont pas fini régler les autres comptes avec mon habitant Jahannam. Un sahabi pose une question il dit ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam comment pour régler compte entre nous ça jour là quand ou même ou peut dire nous la met pour vite Qiyamah ça peut faire ou payer un avertissement le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui dit ben sahaba régler compte là soit les pour à travers les ben hasanat ou bien à travers les ben sayyiat c'est-à-dire ben habitant Jannah quand je pour rentrer dans Jannah c'est là pour régler compte avec ben démon je pour régler compte ça démon qui parle de Jahannam là so ben bon action c'est ben habitant Jannah pour gagner ça et de l'autre côté ça ben habitant qui parle de Jahannam là ça ben guna qui n'a de compte ça ben habitant Jannah là à cause d'une fait khayanat une fait ben là qui dit tout qui l'injustice vis-à-vis ben là que pour régler compte ça ben habitant Jannah là pour avec zo ben bon action pour rentrer dans Jannah ça ben Jahannam là pour prendre Jannati so ben mauvais action pour rentrer là-bas Hazrat Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu tan sa hadith là li remonte le ce chameau li retourne Madina al-Munawwara ou pan biza voyage sa distance là mo remeche ben frère qui ne sorti plus à l'endroit une vini mo rassure ou kawasi de sahabat ben ulama surtout ben ali rasul qui là chacun seconde prêcher pour nous fait doit Allah code nous tous au barakat inchallah alors ça plus tard avec tout adab avec tout respect nous n'a pas mais nous en Allah so nek banda kila en ali rasul descendant rasul sallallahu alaihi wasallam en alim qui pas première fois il a parmi nous alhamdulillah tous les années les gars l'occasion les venir nous en visite de Basti ici à la personne de Huzur Mujahid Islam Hazrat Allama Maulana Sayyid Alamgir Ashrafi damat barakatuhumul aliya lila parmi nous de sa mefilla avec tout respect moi kiyali et à travers sa mefilla li partage sa connaissance avec nous et Allah donne tawfiq pour nous gagner compréhension et nous faire amal le bon conseil qui s'appelle ulama la pour donner nous avec tout le respect na kiyali nara takbir nara takbir nara risala alhamdulillah Alhamdulillahi hadana sawa at-tariq wa ja'ala lana at-tawfiqa khayra rafiq wa salatu wa salamu ala man arsalahu hudan wa bil ihtida'i haqiq wa nuran bihil iqtida'u yaliq wa ala alihi wa sahabihi lazina sa'adu fi ma'arijil haqq bit tahqiq وصعدوا في مناهج الصدق بالتصديق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मॉरिशस की सरजमीन पर गौसुल आलम कुदवतुल कुबरा महबूब यज़दानी मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी कुद्दसा सिर्हुन नूरानी के उर्स पाक के मौके पर हमारी और आपकी शिरकत हो रही है। रब्ब कदीर की बारगाह में ये दुआ है कि अपने महबूबीन के सदक़े में मेरा बोलना, आपका आना और आपका सुनना कबूल फरमाए। आज की इस तकरीब की खुसूसियत ये है आला हज़रत हम शबीह गौसे जीला सैयद अली हुसैन अशरफी मियाँ, जिन्हें मुजद्दिदे सिलसिले अशरफिया कहा जाता है, उनके ग्रैंडसन हुजूर मखदूमुल मशाइख सरकारे कलां, जो बहुत साल पहले इस मॉरिशस की सरजमीन पे आए और जिन्होंने उनके चेहरे को देखा होगा या उनका चेहरा उनके जहनों में नक्श होगा, वो आज भी यही कहेंगे कि हमने किसी वली कामिल को देखा है। आज उसी वली कामिल मखदूमुल मशाइख के नबीरा हुजूर शेख आजम के शहजादे अशरफ मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ अशरफी जिलानी, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट वर्ल्ड सूफी फोरम एंड ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड, आपके सामने हैं और आप उनके चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। थोड़ा सा तेज वाला सुभान अल्लाह बोलिए ताकि हमें लगे कोपा, वरना कहेंगे पाकोपा। हम ये समझे कि आप समझ रहे हैं, वरना हम समझेंगे कि आप नहीं समझे। कोशिश यही करूंगा कि बहुत सिंपल वर्ड्स यूज करूं ताकि आपको बहुत इजीली बात समझ में आए। आइए कुछ कहने और सुनने से पहले दिल की गहराइयों से मकीने गुंबदे खजरा का तस्वुर करते हुए अपनी जबान से दरूद पाक का विर्द करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुझसे कबल आपने एक खिताब के रोल में अल्लामा फादिल, जो हमेशा खिताब करते रहते हैं, सुना। आमतौर से जब किसी वली की बात होती है तो हम सबको इक्वल समझते हैं,
ये भी वली है, वो भी वली है, वो भी वली है। मगर आज हम जिस गौसुल आलम की बात कर रहे हैं वो सिर्फ वली ही नहीं बल्कि उसके दर से विलायत भी बढ़ती थी। और विलायत दो तरीके की होती है। एक वो विलायत है जिसे हम मदरसे की जबान में कसबी कहते हैं, और एक वो विलायत है जिसे हम उलमा उसे वहबी कहते हैं, गिफ्टेड। और एक विलायत मेहनत से। जो विलायत गिफ्टेड होती है वो विलायत का ताल्लुक दुनिया में आने के बाद नहीं होता, बल्कि वो जब अपने मां के पेट में ही रहता है तभी अल्लाह उसे वली बना देता है। क्या तुमने नहीं सुना? हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर पीराने पीर जब 4 साल 4 years 4 days के हुए, 4 month और 4 days के हुए, तो आपकी वालदा ने कहा आज बिस्मिल्लाह ख्वानी हो जाए, आज कुरान शुरू कर दिया जाए। तो उन्होंने एक हाफिज साहब को बुलाया, ये मेरा बेटा अब्दुल कादिर है, आज इसे आप कुरान के जो हुरूफ तहज्जी हैं आ बा ता सा औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह सूरे फातिहा वो पढ़ा दे। हाफिज साहब आए, कहा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे ही ये हाफिज साहब ने कहा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हजरत अब्दुल कादिर ने ये तो शुरू किया, पूरी सूरे फातिहा पढ़ डाली। पहला पारा पढ़ दिया, दूसरा पारा पढ़ दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 पारे उसी महफिल में जहां पे रस्म बिस्मिल्लाह ख्वानी हो रही थी, हाफिज साहब को आपने सुना दिया। अब हाफिज साहब तो बेहोश। मैं तो बच्चे को पढ़ाने आया था, बच्चे को सिखाने आया था, बच्चे को कुरान पाक आज उसकी इफ्तिताह और बिगिनिंग करने आया था। बच्चा सिर्फ सूरे फातिहा नहीं बल्कि 17 पारे पढ़ लिया। कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये बताओ, ये हैरत अंगेज मामला, ये करिश्मा, ये मिरेकल कैसे हुआ? कहा हाफिज साहब बात यह है कि जब मैं अपने मां के पेट में था तो मेरी मां उस वक्त कुरान पाक के इन पारों को पढ़ती थी, तो मैं उसी हालत में मैंने 17 पारों को याद कर लिया। अंदाजा लगाएं। अब यहीं पर मखदूम पाक फरमाते हैं, कहते हैं अल्लाह ताला ने गौसुल आज़म महबूब सुबहानी शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी को महबूबियत का मकाम अता किया था। मकामे बोलिए महबूबियत। गौसे आज़म को महबूबे सुबहानी कहते हैं। क्या कहते हैं? मखदूम पाक को महबूबे यज़दानी कहते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया को महबूबे इलाही कहते हैं, और आपके परदादा को महबूबे रब्बानी कहते हैं। अब है ये क्या चीज?
महबूबियत है क्या? तो मखदूम पाक इस वाक़े को नकल करते हैं, कहते हैं कि जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने तमाम ज़ाहिरी, इंटरनल, एक्सटर्नल तमाम उलूम को सीख लिया, आलिम हो गए, रूहानियत के उलूम से आशना हो गए, तो गैब से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, तुम लवर बनना चाहते हो, आशिक बनना चाहते हो, या माशूक बनना चाहते हो? आशिक और माशूक समझिए कि आप अगर किसी से प्यार करें तो आप हुए आशिक, और जिससे आप प्यार करते हैं वो हुआ माशूक। लवर को आशिक बोलते हैं, और जिससे लब किया जाए उसे माशूक कहते हैं। तो गैब से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर जिलानी, तुम इश्क की राह में आशिक बनना चाहते हो कि तुम अल्लाह से इश्क करो, या अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे? दो तरफा होती है। एक होती है कि हम अल्लाह से मोहब्बत और इश्क करें, और एक है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत और इश्क करे। तो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी को समझ में नहीं आया क्या जवाब दे। तो आप अपनी वालदा फातिमा सानिया हजरत अबुल खैर के पास आए, अम्मी जान, आज एक आवाज आई, और उस आवाज ने कहा कि तुम आशिक बनना चाहते हो या माशूक बनना चाहते हो? कौन सी राह तुम इख्तियार करना चाहते हो? तो मां ने कहा, बेटा, माशूक बनना ये आसान है, मगर आशिक बनना ये बहुत मुश्किल है। इसलिए कि क्या तुमने नहीं देखा, वो आशिक की राह थी जो इमाम हुसैन मैदान करबला में पहुंचे, तो आशिक का तकाजा ये है कि सब कुछ रब के लिए कुर्बान कर दे। तो हुसैन की आशिकी यही कहती थी, जब तू रब का आशिक हुआ है, जब तू उस इश्क के रास्ते पे चला है, अब घर बार भी लुटाना है, बच्चे भी कुर्बान करना है, भूखे भी रहना है, प्यासे भी रहना है, अपने आप को कुर्बान भी करना है। तो इश्क की राह में अगर कोई आशिक होता है, सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है, मगर रब जब तेरा आशिक हो जाए तो वो कुर्बानी तुम्हें नहीं देनी पड़ती। इसीलिए अल्लाह ने गौसे आजम को महबूबे सुभानी का खिताब दिया कि अब्दुल कादिर जिलानी ये महबूबे सुभानी है, और गौसुल आलम मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी को भी महबूबे यज़दानी का खिताब हुआ। ये इश्क की राह में तो निकले थे, मगर ऐसा इश्क था कि सल्तनत को, किंगडम को ठोकर मार दी। और आपको बताऊं कि मखदूम पाक, जो लोग चिगित चिगित उर्दू बोलते हैं, तो वो लोग भी चिगित के तौर पे जान लें कि फाउंडर ऑफ द उर्दू, फाउंडर ऑफ द उर्दू लैंग्वेज मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, अमीर खुसरू, ये शायरी में पहले उर्दू के फाउंडर पर्सनालिटी हैं, और मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, ये जो तुम उर्दू बोल रहे हो, भोजपुरी बोल रहे हो, चाहे थोड़ा बोल रहे हो,
या ज्यादा बोल रहे हो, ये यकीनन सदका मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का है। और लताइफ शरफी उठाकर देखिए, हजरत निजामुद्दीन यमनी फरमाते हैं, मैंने ऐसा वली रूए जमीन पर देखा ही नहीं कि जिस इलाके में, जिस शहर में, जिस मुल्क में, जिस स्टेट में, जिस विलेज में मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी गए और वहां पर जो भी लैंग्वेज बोली जाती थी, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने सिर्फ उसी लैंग्वेज में खिताब नहीं किया, बल्कि उसी लैंग्वेज में उस वक्त जरूरत के मुताबिक कोई किताब भी लिख दी। ये आजान नहीं है। मैं यहां आऊं और किरोल कभी ना जानता हूं तो एक वर्ड भी किरोल का बोल नहीं सकता। मैं फ्रांस जाऊं, यूके जाऊं, अंग्रेजी नहीं जानता तो एक वर्ड भी अंग्रेजी का नहीं बोल सकता, क्योंकि उस लैंग्वेज को हमने सुना जरूर है मगर हमने उसे सीखा नहीं है। मगर ये अल्लाह के वली हैं, इन्हें सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये सीखे सिखाए खुद आते हैं और ये दुनिया की जो भी लैंग्वेज होती है उसी लैंग्वेज में खिताब भी करते हैं और किताब भी लिख देते हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं आमतौर से मखदूम पाक के ताल्लुक से इसलिए बयान कर रहा हूं क्योंकि बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं, और अगर मखदूम पाक का उर्स भी हो तो बहुत कम उनके बारे में बताया जाता है। लेकिन हम एक रूहानी बेटे होने की हैसियत से, उनके गुलाम होने की हैसियत से हमारी ड्यूटी ये है कि अपने आका का, अपने मखदूम का जिक्र करें ताकि उनकी बरकतें खुद मिलें और उनकी बरकतों को बांट सके। आखिरी बात, सिलसिले चिश्त, कादरी सिलसिला, चिश्ती सिलसिला, नक्शबंदी, सुहरबंदी, ये 4 सलासिल हैं। मैं समझता हूं कि इनमें से किसी से पूछूं हु इज फाउंडर ऑफ द सिलसिला कादरिया, तो हर एक जवाब देगा। कौन है सिलसिले कादरिया के फाउंडर? कौन है? बोले कोजे कुजे गौसे पाक। और सिलसिले चिश्तिया का फाउंडर कौन है? रॉन्ग। ये सही जवाब नहीं है। सिलसिले चिश्त के फाउंडर हाशिम सूफी, जो सबसे पहले चिश्ती कहलाए, और बाज लोगों ने अफगानिस्तान में एक शख्सियत है उनकी तरफ से मंसूब किया है, मगर मशहूर ये है कि हजरत हाशिम सूफी चिश्ती पहले चिश्ती कहलाए, मगर सिलसिले चिश्तिया को सबसे ज्यादा फरोग इशाअत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जरिए मिली है। इसलिए लोग समझते हैं कि चिश्ती सिलसिले के फाउंडर गरीब नवाज है, मगर चिश्ती सिलसिले के फाउंडर गरीब नवाज नहीं। और बास लोगों ने मौदूद चिश्ती को भी कहा है। बहरहाल सिलसिले चिश्तिया की शोहरत गरीब नवाज है। सोहरबंदिया, नक्शबंदिया अकाए नक्शबंद मौलाए सोहरबत की तरफ मंसूब है। ये 4 सलासिल मशहूर है। सबसे ज्यादा नॉन मुस्लिम को अगर मुसलमान किसी सिलसिले ने बनाया है तो वो सिलसिले चिश्त है, क्योंकि गरीब नवाज
हिंदुस्तान गैर मुस्लिमों के इलाके में गए और हिस्ट्री कहती है कि 90-100,000 पीपल गरीब नवाज के हाथों मुसलमान हुए। मगर मखदूम पाक, ये भी चिश्ती बुजुर्ग हैं, ये तारीख चिश्त में पहला बुजुर्ग है, चिश्ती ऑर्डर में ये पहले वली है कि जब बनारस की सरजमीन पर पहुंचे, इंडिया में बनारस है जहां हमारे मोदी जी चुनाव लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, वहां का पान भी बहुत मशहूर है। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बनारस पहुंचे तो देखा कुछ पंडित लोग हैं, वो मूर्ति के आगे पूजा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। तो हमने देखा व्हाट इज डूइंग, क्या कर रहे हो? कहा हम अपने भगवान को की इबादत कर रहे हैं, उसकी उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं। क्या ये कुछ बोलता है? मुंह से कुछ बोलता है? आप कैसी बात कर रहे हैं? ये मिट्टी की मूर्ति है, मूर्ति कुछ बोलती नहीं। हाँ, हमें यकीन है कि हमारी बात जरूर सुनती है। कब बोलती नहीं? कब नहीं बोलती? कहा अगर मैं इससे बुलवा दूं तो सभी बोलो। कहा हुजूर, मिट्टी की मूर्ति बोलती नहीं, पत्थर की मूर्ति बोलती नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप पागल हैं, दीवाने हैं। कहा नहीं, अगर मैं इस मूर्ति से बुलवा दूं तो? अगर आपने इस मूर्ति से बुलवा दिया तो ये जो लाखों पंडित हैं, 1000 2000 नहीं, 100,000 वन टाइम ये सिलसिले चिश्त का रिकॉर्ड है। बात लोग कहते हैं 500,000, ये सिलसिले चिश्त का रिकॉर्ड है। तो मखदूम पाक ने मूर्ति को इशारा किया, कहा बोल। जैसे ही मखदूम पाक की जबान से निकला कि बोल, तो मूर्ति बोलने पड़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद हकीकी सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद मुस्तफा अल्लाह के रसूल। जब पंडितों ने देखा मूर्ति बोलने लगी, तो सिर्फ मूर्ति की जबान से कलमे तौहीद की आवाज बुलंद नहीं हुई। मौलिक ने इस वाक़े को कागज पे लिखा कि एक ही वक्त में बनारस की सरजमीन पर 100,000 नॉन मुस्लिम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के हाथों ईमान में आए। दूसरी बात, मैं वो आम बात नहीं बताना चाहता जो आम सुनते हैं। ये हमारे उलमा भी बैठे हैं ताकि उनके लिए भी ये सारी बातें कल बयान करने के लिए जरूरी हो। और ये कोई मुकाबला, ये कोई कंपटीशन नहीं कर रहा। हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से आपने सुना होगा कि वो मुर्दे को जिंदा कर देते थे। सुना है? हमारे उलमा रोज बयान करते हैं कि कब्रिस्तान गए, गौसे आजम ने ठोकर मारी, कुम बिइज़्नी कहा और कब्र से मुर्दा जिंदा हो गया। ये तो सुना है ना? मैं कोई मुकाबला नहीं कर रहा हूं, मैं मखदूम अशरफ की खुसूसियत बयान कर रहा हूं। कोई मरेगा तो वो इंसान होगा। कब्रिस्तान में कौन जाता है? इंसान ही ना। जिन्नात को तो दफन नहीं किया जाता, जानवरों को तो दफन नहीं किया जाता, इंसान।
बॉडी पहले है, सोल पहले है, रूह निकल गई, मर गया, कब्र में चला गया। गौसे आजम ने उसे जिंदा कर दिया। नहीं, रूह बॉडी में नहीं थी, सब कुछ था, हैंड था, फीट थे, हेड था, जबान थी, सब कुछ था, सिर्फ रूह नहीं थी। गौसे आजम की करामत, रूह वापस आई, वो जिंदा हो गया। मगर जानते हो मखदूम अशरफ कौन है? अहमदाबाद गुजरात की सरजमीन है। अपने खुलफा और मुरीदीन के साथ आपने कई दिनों तक क़याम किया। अब जाने का वक्त आया, देखो सब लोग आ गए, कौन करो, मेरा वो खलीफा, मेरा वो मुरीद, अब दूसरे शहर जाना है। कौन किया गया? ये फला, ये फला, ये फला। हुजूर, गुलखैनी नहीं है आपका मुरीद। उस मुरीद का नाम था गुलखैनी, बहुत चहीटा था, मखदूम पाक बहुत प्यार करते थे। कहा हुजूर वो नहीं है। कब पता लगा? देखो कहां गया। अब ढूंढते ढूंढते वो एक जगह पे पहुंचे जहां पे मूर्ति बनाई जाती थी और उसमें खूबसूरत परी जैसी एक लड़की की मूर्ति रखी हुई है और गुलखैनी ऐसे देख रहे हैं मूर्ति को। अब वो जाके हिला रहा, चल भाई कहां खड़ा है? वो बस मूर्ति को देख रहे। वो सारे खलीफा आजीज मुरीद गए, भाई आके मखदूम पाक से कहा हुजूर, गुलखैनी तो एक पत्थर की मूर्ति का आशिक हो गया है। उसे ना कुछ सुनाई देता है, उसे कुछ ना दिखाई देता है, कुछ बोलो वो सुनता ही नहीं, वो बस उसी को देख रहा है। मखदूम पाक तशरीफ ले गए, गए तो देखा वो बस मूर्ति को, उस स्टैचू को देख रहा है। कहा गुलखैनी, अब इससे पहले एक बात बता दो, ये जो स्टैचू होता है कभी उसमें जान रहती है? कभी उसमें जान होती है? वो कभी पहले जिंदा रहा हो, बाद में मर गया हो, ऐसा कुछ होता है? मूर्ति डेड होती है, स्टैचू होता है, उसमें न पहले जान न बाद में जान। मगर कब्र में जो मुर्दा जाता है पहले जान थी, मगर जो मूर्ति होती है, जो स्टैचू होता है, उसमें जान कभी नहीं। मखदूम पाक ने देखा कि मेरा मुरीद एक मूर्ति का, एक स्टैचू का आशिक हो गया है, एक लड़की का जो मूर्ति है आशिक हो गया। कहा तुझे प्यार है, तुझे इश्क है? सर से इशारा किया, हां हुजूर। कहा ऐ मूर्ति, ऐ दोशीज़ा, ऐ स्टैचू, मेरे मुरीद को तुझसे प्यार हो गया है, तुझ जिंदा हो जा। गौसे आज़म ने मुर्दे को जिंदा किया, मगर मखदूम अशरफ गौसुल आलम महबूब अस्तानी सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी वो वली कामिल, वो गौसे आलम है कि जिसमें जान नहीं थी उसमें जान डाली, और उस गुलखैनी की शादी उस स्टैचू के साथ जो मूर्ति थी औरत में बदल गई हुई, आज भी उसकी नस्लें जिंदा हैं। ये है मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। मैं क्या बताऊं कि वो क्या है, अल्लाह ने उन्हें क्या मुकाम अता किया। जब किसी ने पूछा था हुजूर, कोई ना कोई किसी नबी के नक्शे कदम पर होता है जो वली होता है, क्योंकि गौसे आज़म ने फरमाया है लिकुल्ले वलियुन कदमुन, लिकुल्ले वलीन कदमुन,
अन्नी अला कदमिन नबी बदल जमाल लिकुल्ले वली कदम, अन्नी अला कदमिन नबी बदल जमाल। हर वली जो मखसूस वली होते हैं, जो महबूब वली होते हैं, जो गौस के मुकाम पर फाइज होते हैं, जो कुतुबुल अक्ताब होते हैं, वो किसी न किसी नबी के कदम पर होते हैं। उनकी विलायत किसी न किसी नबी के कदम पर होती है। कहा गौसे आजम की विलायत, खुद गौसे आजम फरमाते हैं हर वली के लिए कोई ना कोई कदम है, मगर मेरी विलायत पर खातमुन नबीयीन सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक। इसीलिए मेरा आका तमाम नबियों में बेमिसाल है, ऐसे तमाम वलियों में गौसे आजम बेमिसाल है। मखदूम पाक से पूछा गया, हुजूर ये तो गौसे आजम थे, इनकी विलायत पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक, मगर आपकी भी विलायत पर किसी का कदम है? तो हज़रत मखदूम पाक फरमाते हैं मैं भी सोचता रहा कि अल्लाह ने मुझे किस नबी के क़ल्ब पर, उसके कदम पर मेरी विलायत मुझे अता की है। तो हज़रत नजमुद्दीन कुबरा ने ये बात कही थी कि मखदूम अशरफ औलियाए कामलीन में वो वली कामिल हैं कि जिनके विलायत पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कदम मुबारक है। जिस तरह ईसा का मुजज़्ज़ा मसीहाई है, बीमारों को शिफा देना है, मुर्दे को जिंदा करना है, नाबीना को बीना करना है, किसी कोढ़ वाले को उसके कोढ़ से शिफा याबी देना है, वही हाल मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का है। कसम खुदा की ये 700 साल पहले की बात नहीं है। आज भी उनके आस्थाने के कुर्ब में बहने वाले पानी नीर शरीफ को अगर तुम पी लो तो पागल हो तो तुम्हारा पागलपन दूर हो जाएगा, बीमार हो तो तुम्हें शिफा याबी मिल जाएगी। ये है मखदूम अशरफ। कभी उस आस्थाने पे जाकर तो देखो, वो मंजर अपनी आंखों में बसा कर तो देखो। ये अल्लाह का करम है कि मॉरिशस की सरजमीन पर मखदूम पाक ने अपने शहजाद गान को भेजा, हुजूर सरकारे कला को भेजा, नईमुल औलिया को भेजा। आज हम लोग उनकी आस्थाने की खाक की खैरात आप सबके बीच में बांट रहे हैं ताकि मेरा मखदूम राजी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अशरफ मिल्लत हो। आज जो ये उर्स मखदूमी का आगाज हुआ है, कई सालों से ये शुरू है सुन्नी सेंटर में उलमा एकेडमी ने, मैं समझता हूँ कि बाज़ादा तौर पर इसकी शुरुआत की। आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग मखदूमी फैजान से मालामाल हो रहे हैं। लायक मुबारकबाद है यहाँ के मुतवल्ली भाई इमरान साहब और हमारे भाई इकबाल साहब, बड़े दीवाने हैं भाई। उनकी दीवानगी भी अजीब है। अभी मुहर्रम में पूछे कि हजरत की चौचा जाएंगे? अरे मैंने कहा भाई इतनी गर्मी पड़ रही मत जाओ। हर बार पूछते हैं कि हजरत की चौचा कब जाएंगे कब जाएंगे, मैं हर बार मना करता हूँ। तो कहते हैं कि हजरत आप जब भी मैं कहता हूँ जाने के लिए आप मना करते हो। मैंने कहा हो सकता है मखदूम पाक ने ये कहा हो कि इकबाल मखदूम पाक का उस कम से कम अपने इलाके में मना, आएगा तू तन्हा तो तुझे तन्हा फैज मिलेगा, मगर मजमा आएगा तो पूरे इलाके को फैज मिलेगा। तो मैं यहाँ के मुतवल्ली भाई इकबाल, तमाम लोग, हमारे भाई एहसान जो सुन्नी सेंटर की पूरी टीम है ऑर्गेनाइज करती है, मुबारकबाद के काबिल हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन खिदमात को अपनी बारगाह में मखदूम पाक के सदक़े कबूल फरमाए। आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं चाहूंगा
मैं चाहूंगा, क्योंकि हम भी और पूरा खानदान भी, यहां तक कि जिसे दुनिया शेखुल इस्लाम कहती है, गाजी मिल्लत कहती है, वो भी उस दर के गुलाम है जिसे सरकारे कला कहा जाता है। आज उस सरकारे कला के पोते अशरफ मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ जिलानी मखदूमी फैजान, मखदूमी खैरात, मखदूमी नवाजिशात आपके मुल्क में बांटने आए हैं। उनकी दुआएं रब की बारगाह में कबूल हुई तो हमारी जिंदगियां संवर जाएंगी। उनकी बातों पर हमने अगर आमीन कहा, लब्बैक कहा और अल्लाह ने उसे सुन लिया तो बिगड़ा हुआ मुकद्दर यकीनन संवर जाएगा। हम गुजारिश करेंगे अशरफ मिल्लत शहजादे शेख आजम नबीर हुजूर सरकार कलां से कि सिर्फ 2 जुमला मुबारकबाद के और कि ये जो उससे मखदूमी शुरू हो रहा है इसे कभी अपनी जिंदगी में खत्म ना करें, और फिर उसके बाद हल्के जिक्र सलात व सलाम दुआ होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब कोई तकरीर का वक्त तो नहीं रहा और थोड़ा तबीयत भी आज मेरी ठीक नहीं लग रही है, खांसी बार बार आ रही है। तो आपने एक बेहतरीन तकरीर महबूब यज़दानी गौसुल आलम सैयद अशरफ जहांगीर सबनानी के ताल्लुक़ से समाअत फरमाई। और ये भी सादत की बात है और ये मखदूमी फैज़ान की बात है कि मेरे मखदूम ने आपको पसंद किया और अपना उर्स करने की रब तबारक ताला ने आपको तौफीक दी। अपनी उम्र का जो मेरा मुशाहिदा है ज़ाती तौर पर, उस चीज़ को आपसे शेयर कर दो। मैंने उर्स मखदूमी को अपने बचपन में देखा तो सलामी गेट वहाँ पर है और फिर सरकार का आस्थान, तो एक अच्छी खासी दूरी है। उस बीच में 3 गेट पड़ते हैं, उसके बाद फिर मखदूम सिमना का आस्थान आता है। वहाँ से होश से देखता चला है और आज तो समझ में ही नहीं आता कि कितने लोग, 5 मिलियंस कि 10 मिलियंस कितने लोग आते हैं पता नहीं। एक खास बात जो मेरी नोटिस में आई वो ये कि जिसने भी मखदूम सिमना का उर्स किया और उनके नाम से लंगर, इतनी बड़ी अगर वो पतीली में उसने किया है जो बर्तन है, तो वो यहां से शुरू हुआ है और देख की तरफ गया है। ये एक ऐसा फैज़ जारी होता है कि
दिगर तमाम जरूरियात तो अपनी जगह जो है पूरी होती ही होती हैं, तभी तो वो यहां से यहां आता है। तो आपका सब पर करम है, ऐसा करम जो सिर्फ इंसान महसूस नहीं करता, दिखता है। वैसी जात जिन्हें हम मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर सबनानी कहते हैं। और बड़ा ही खास करम उनका अपने मुरीदों पर, और बड़ा ही खास करम अपने खानदान पर, औलाद नूरुलैन पर। जब करम औलाद नूरुलैन पे कर रहे हैं, अपने जानशीन की औलादों पे कर रहे हैं, तो फरमाते हैं मैंने औलाद नूरुलैन को खजाने इलाही से जोड़ दिया है, खजाने इलाही से जोड़ दिया है। सिर्फ अपनी जात तक नहीं, वो सिलसिला जारी कर दिया कि दुनिया में जब तक औलाद नूरुलैन इस जमीन पर हैं, जोड़ दिया है ना, तो नस्लन बाद नस्लन वो जुड़े हुए हैं। जब तक वो कनात पसंद होगी, दुनिया उनके सामने झुकी हुई नजर आएगी। जब तक उनका हाथ ऐसे रहेगा, वो बुलंदी पर होंगे। जिस दिन हाथ ऐसे कर दिया, जलील ख्वार हो जाएगा। इसीलिए मैं बड़े ही एतमाद के साथ कहता हूं, और अपने खानदान के तमाम जो अफराद हैं जो इस पेशेनगोई और इस हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि किसी माँ ने वो बेटा नहीं जना जो हमें खरीद सके। क्या खरीदोगे तुम जब मेरे मखदूम ने हमें खजाने इलाही से जोड़ दिया है? क्या खरीदोगे? और मुरीदों के लिए मैंने अपने पीर और मुर्शिद मखदूमुल मशाइख सरकारे कला कि जिंदगी में एक चीज देखी कि अगर किसी ने दावत किया और आपने कोई कमिटमेंट पहले से किया हुआ है, तो कभी कमिटमेंट नहीं तोड़ते थे, साफ कह देते भाई मुझे फला जगह जाना है, मैंने वादा किया है, फिर कभी जब वक्त होगा तो जरूर आऊंगा, इनकार नहीं है, लेकिन चूंकि मैं वादा कर चुका हूं तो मुझे जाना है। लेकिन अगर उसी वक्त कोई आता ये कह देता कि हुजूर 2 लोग मुरीद होना चाहते हैं, तो रुक जाते, भाई तुम रुक जाओ। तो जिसके यहां दावत में जा रहे हैं उससे कहते थोड़ी सी मोहलत दे दो, मैं उन लोगों को मुरीद कर लूं। कई बार देखा तो एक सवाल जहन में आया कि आखिर इसमें क्या मामला है। पीर मुर्शिद हैं, बदगुमानी का कोई सवाल ही नहीं, और हमने तो उन्हें घर में भी वैसा ही देखा और वैसी अंदाज में बाहर भी देखा। दोहरी कोई जिंदगी नहीं कि घर में कुछ और बाहर कुछ। तो बाहर वली बन जाना आसान है, घर में वली बन जाओ तो फिर बात है। औलाद मान ले वली, बेटी मान ले, बेटा मान ले, और इंतहा यह है कि बीवी मान ले। तो सरकारे कला वो है जिनकी बीवी भी उनकी मुरीद, और एक नहीं 2 बीवी। मेरी दादी का इंतकाल हुआ तो निकाह सानी किया, तो जो मेरी दादी थी वो भी उनकी मुरीद, और जब दूसरी दादी आई वो भी उनकी मुरीद। और एक वाकया बताऊं जो मैंने अपनी आंखों से देखा कि घर के अंदर अक्सर जब कोई मेहमान नहीं होता तो सरकारे कला घर में चाय पीते, और अगर मेहमान होता था तो नशिशगाह में सबके साथ पीते। तो इत्तेफाक है कि उस दिन कोई मेहमान शाम की चाय पर नहीं है, तो खबर आ गई कि हम अंदर आएंगे। तो घर में आए तो गर्मियों का मौसम, तो चारपाइयां बिछती हैं वहां गांव के अंदर।
तो आंगन के अंदर जो खुला एरिया है उसमें चरपाइयां लग गई। शाम का वक्त है, असर के बाद तशरीफ लाए। उन्हें आना था, सभी लोग घर में बैठ गए, इकट्ठा हो गए, इंतजार कर रहे हैं कभी हजरत आएंगे और चाय हम लोग पिएंगे। दादा नहीं कहते थे, हम जब आपस में बात करते तो हजरत, हाँ कोई पूछे कि आपके कौन है तो कहते दादा है, वरना आपस में कम्युनिकेशन भी हम ये नहीं कहते थे दादा मियाँ या दादा, नहीं हजरत। ये चाहे बेटा हो या बेटी हो, भांजा हो, भांजी हो, भतीजा हो, कोई भी हो, इवन बीवी भी हजरत हजरत। तो मैंने दादी को देखा कि 2 चरपाइयां लगी हैं अगल बगल, फिर बाकी लोगों की आसपास लगी हैं। तो दादी को देखा कि पायती बैठी हुई है। पायती का मतलब जिधर पैर होता है, और जो सर के जानिब वो खाली है, कोई है नहीं, पर वो पैर की तरफ बैठी है अपनी चरपाई पर। सरकारे कला की चरपाई पर नहीं है, वो अपनी चरपाई 2 लगी है ना, तो एक उनके लिए और एक हजरत के लिए, सरकारे कला के लिए। तो अपनी चरपाई पर भी वो सरहाने नहीं बैठी हैं, पायताने बैठी हैं पायती की तरफ। तो मैंने कहा, तो मैं आपा कहता था, हम लोग दादी नहीं कह के आपा कहते कि आपा आप उधर बैठिए ना, हम लोग इधर बैठे ना। कहने नहीं हम यहीं ठीक है। तो कब उधर बैठे जब जिद किया तो क्या, तो फरमाती हैं हजरत आने वाले हैं ना। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, पर आप तो बीवी है ना। कहने ये भी सही है, मैं बीवी हूं, पर ये भी तो सही है कि वो मेरे पीर हैं। अदब तो मुझ पे भी लाजिम है। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये मनवाना आसान नहीं है। तो वली तस्लीम शुदा, चलता फिरता जिंदा वली। और हम तो ये कहते हैं कि वो आदमी खुशकिस्मत है, सिर्फ मुरीद हो जाना उनका खुशकिस्मती नहीं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जिसने उन्हें देखा और उनके देखने वाले को जो देखे वो भी खुशकिस्मत है। कि आज मैंने उस आदमी का दीदार किया है जिसने सरकारे कला को देखा। वो ऐसी बरादराने मिल्लत इस्लामिया, उसका अमल यह है कि रुक जाओ, थोड़ा सा वक्त दे दो, थोड़ा सा चलेंगे, अभी आ जाने दो, मुरीद हो जाने दो। तो मैं बहुत दिनों से कोशिश में था कि पूछूं हजरत इसके पीछे राज क्या है। कोई बदगुमानी नहीं। कोई और पीर होता तो सोच लेता कि मुरीदों की लिस्ट बढ़ा रहे हैं, मेरे ढेर सारे मुरीद हो जाए। और आजकल ऐसा है, फराड, झूठ, सच, असली, नकली, पता नहीं क्या क्या करके अपनी डफली बजवाते हैं। 2-4 एजेंट रख लेते हैं जो विलायत बयान करते हैं, ग्रुपबाजी, पता नहीं क्या क्या होता है ना। चीख चीख कर अपनी विलायत बयान करते हैं। अल्लाह बेहतर जाने क्या क्या करते हैं। तो चूंकि सामने सरकारे कला तो बदगुमानी हो ही नहीं सकती। बचपन से शऊर तक देख रहे और सबको देख रहे। घर में बेटा है तो वो भी हाथ बांधे खड़ा है। ऐसा बेटा जिसे उलमा की जमात में मखदूमुल उलमा कहा गया, और तरीकत के मैदान में लोगों ने जिसे शेख आजम कहा, वो ऐसे हाथ बांधे खड़ा है। खानदान में कोई ऐसा नहीं जिसके वो पीर ना हो, जिसके वो हजरत ना हो। सारे खानवादे अशरफिया के हजरतों के आला हजरत का नाम है सरकारे का नाम। तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया, बड़ी जुर्रत करके मैंने अदब के साथ कि हुजूर एक बात समझ में नहीं आई। मैंने अक्सर देखा है कि अगर कोई दावत के लिए कहता है और आप कहीं जा रहे हैं
तो आप साफ तौर पर जवाब दे देते हैं, अरे भाई मैंने वादा किया है, मुझे वहां जाना है, देर हो जाएगी, और किसी के यहाँ वादा करके देर से नहीं जाना चाहिए। तो आप उससे कहते हैं आगे, फिर जब मैं आऊंगा तो तुम्हें दूंगा वक्त, तुम्हारे यहाँ चलूंगा, इनकार नहीं है। लेकिन अगर उसी सना में कोई आ जाए तो आप गाड़ी में इंतजार कर लेते हैं, 2 कदम चल लेते हैं, इसके पीछे क्या राज है? तो हाँ सुनो, जोश में आ गया, चेहरे की रंगत बदल गई, अंदाज बदल गया, कहा हाँ सुनो, क्या तुमने नहीं सुना कि मेरे मखदूम ने क्या फरमाया है? क्या हुजूर आप ही बयान फरमा दे। कहा सुनो, मखदूम सिमना ने फरमाया है कि मैंने अपने रब को राजी कर लिया कि जब तक एक अशरफी जन्नत में जाने से रह जाएगा, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। एक अशरफी। अब आप अंदाजा लगाइए, क़यामत तक जो भी उनके सिलसिले से वाबिस्ता हो गया, मेरे मखदूम ने अपने रब को राजी कर लिया है। तो फरमाते मैंने राजी कर लिया है, एक अशरफी रह जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। तो बेटा जब कोई मुरीद होने के लिए कहता है तो मैं इसलिए उसे फौरन कर लेता हूं ताकि मेरे मखदूम की बशारत में वो भी शामिल हो जाए, जहन्नम की आग से बच जाए। एक जवाब। और दूसरा ये कि कल मेरे मखदूम ने अगर पूछ लिया कि मुझसे मोहब्बत करने वाला, मुझसे चाहने वाला, मेरे दामन में पनाह लेने की ख्वाहिश रखने वाला तुम्हारे पास आया और तुम्हें दावत का ख्याल था, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मेरे मखदूम ने सिर्फ ऐसा नहीं, जब जमीन पर थे तभी सारी करामतें हैं, आज जमीन में है फिर भी अदालत लग रही है और रोज का काम है। ऐसा लगता है कि चौछा शरीफ में अगर आप जाएं तो अपनी आंखों से, खुली हुई नेकेड आई से, फिर किसी तकरीर सुनने की जरूरत नहीं, खाली 15 मिनट घूम जाओ, सारा किस्सा समझ में आ जाएगा। उस पूरे दायरे में घुस जाओ, सारा किस्सा, किसी कमेंट्री की जरूरत नहीं है। बस नीर के किनारे किनारे घूम जाओ, सारे मरीज बता देंगे कि इस वक्त क्या कैफियत है, क्या आलम है, क्या माहौल है। ऐसा महसूस होता है कि कोई शहंशाह तख्त लगाए बैठा हुआ है, वो तमाम शयातीन अजिन्ना मुजरिम की हालत में गिरफ्तार होकर सामने खड़े हैं और मखदूम सिमना उनका फैसला कर रहे हैं। कोई कहता है मुझे कैद मत करो, कोई कहता है मखदूम मुझे सजा मत दो, कोई कहता है मखदूम मुझे जलाओ मत, मैं मखदूम में वादा करता हूं, माफी मांगता हूं, मुझे आजाद कर दो, अब मैं इस मरीज को कभी परेशान नहीं करूंगा। ये कमेंट्री कोई मुफ्ती साहब करते हुए नजर नहीं आएंगे, ये कमेंट्री कोई मुहद्दिस नहीं करता, ये कोई अल्लामा, कोई फहामा नहीं, ये कमेंट्री हर मरीज करता हुआ नजर, एक नॉर्मल इंसान बैठकर बताता है, वह झूम रहा है, बोल रहा है और शिफा याब होके आता है। यह है सैयद अशरफ जहांगीर, जिन्हें महबूब यज़दानी गौसुल आलम सैयद अशरफ जहांगीर समदानी कहते हैं। और इनके मुकाम में एक बात आखिरी कहकर, अब देखिए बुलवाई लिया आपने, और मेरे मखदूम का फैजान खांसी भी नहीं आई पहले मैं डर रहा था, ये सिर्फ फैजान मखदूम है और क्या। वही तो कहा मेरा मखदूम तो वो है कि मूर्ति में जान डाल दे तो गले की खराश क्यों कर खत्म ना होगी। तो बरादरान गौस पाक, और ये बड़ा खास रब ने फजल किया खानवादे अशरफिया पर।
कि एक गौस की हम नसबी औलाद हैं, जिसे महबूब सुबहानी गौस आजम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, जिनकी पुश्त से हम पैदा हुए हैं, नसबी औलाद। और दूसरे गौस गौसुल आलम, और तीसरे महबूब दुनिया में, दुनियाए विलायत में तीन महबूब, महबूब सुबहानी गौस आजम शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, दूसरे महबूब महबूब इलाही हजरत सैयद निजामुद्दीन औलिया, और तीसरे महबूब महबूब यज़दानी गौसुल आलम सैयद अशरफ जहांगीर समनानी। और दुनियाए विलायत में एक अकेली जात है, अकेली जात, और दुनियाए नबूवत में एक अकेली जात है, हमारे नबी, जो अल्लाह के हबीब हैं। कोई कलीम है, कोई खलील है, कोई मसीह है, लेकिन दुनियाए नबूवत में हबीब वन एंड ओनली वन हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दुनियाए विलायत में अकेले हबीब अगर कोई है तो ख्वाजाए ख्वाजगाह अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी है। कि जब विसाल हुआ तो आपकी पेशानी पर दस्ते कुदरत से लिखा था, हाजा हबीबुल्लाह माता हुब्बुल्लाह, ये अल्लाह का हबीब है और उसी की मोहब्बत में ये दुनिया से गया। अब कितने नाम लिए मैंने, गौसे पाक, गरीब नवाज, महबूब इलाही, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। और सिलसिला अशरफिया चिश्ती और कादरी सिलसिले का संगम है, जहां ये दोनों दरियाएं आकर मिल गई, फिर एक दरिया चली जिसका नाम है अशरफी, अशरफिया। तो कादरिया चिश्तिया दो नहरों पर फिर एक बनी अशरफिया। इसीलिए जब सिलसिले अशरफिया की बात करें तो तीनों महबूब कहां, सिलसिले अशरफिया में, हबीब कहां, सिलसिले अशरफिया में, दुनियाए विलायत में। गौस हर दौर में होता है, पर मजार दो की पता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत छुपा देता है, इन्हें जाहिर होने का इख्तियार नहीं, उनकी मज़ारें छुप जाती हैं। नाम हम जरूर जानते हैं कि फलां गौस फलां गौस फलां गौस गुजरे हैं, मज़ार नहीं मिलेगी। लेकिन दुनिया के ये दो गौस ऐसे हैं, गौस आजम सबको पता है कहाँ है, जोर से बोलो, और गौसुल आलम कहाँ है, और ये दोनों गौस किस सिलसिले में, अशरफी सिलसिला। तो बिरादराने मिल्लते इस्लामिया, क्या कह रहा था भाई, मैं भूल गया, महबूब। तो गौसे पाक क्या फरमाते हैं, कोई दिन, अब दूसरी बात बताने जा रहा हूं, गौस पाक क्या कहते हैं, कोई दिन, कोई महीना, कोई साल, कोई ऐसा नहीं जो मेरी बारगाह में हाजिर न होता और मेरे हुक्म से आगे बढ़ता है। तीन आया बता रहा है, ऐ मेरे गौस, ये दिन जो है मैं हाजिर हूं और ये चीजें मेरे अंदर हैं, आज ये जाहिर होगी। महीना आता तो महीना बताता है, मेरे गौस मैं महीना हूं, इस 30 दिनों में ये जाहिर होगा। कोई साल, वो भी हाजिर होता है, ये पूरे साल में ये जाहिर होगा, और मैं उनके हुक्म से आगे बढ़ता। हुक्म कौन देता है, हुक्म देने का इख्तियार किसको होता है, सुल्तान बादशाह को। तो अंदाज क्या है, मेरे हुक्म से, यानी दुनियाए विलायत के शहंशाह का नाम
गौसे आज़म। यही बात मखदूम सिमना भी फरमा रहे हैं, अंदाज बदला हुआ है। क्या फरमाते हैं कि ये मेरे रब का बड़ा फजल है कि 12 साल हो गए मेरे रब ने खजाने इलाही की कुंजी मेरे सुपुर्द कर दी, अपने खजाने की कुंजी मेरे सुपुर्द कर दी, और इस आलम का निजाम मेरे निजाम में दे दिया। गौस पाक क्या कह रहे? हुक्म से। ये क्या कह रहे? निजाम, यानी दुनियाए विलायत के शहंशाह का नाम गौसे आजम है और दुनियाए विलायत के वजीर आजम का नाम मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर समनानी है। एक सुल्तान है, एक सुल्तान है तो दूसरा वजीर। उस सल्तनत दुनियाए विलायत की सल्तनत के शहंशाह गौसे आजम, और इस पूरी सल्तनत का निजाम मेरे गौसुल आलम सैयद अशरफ जहांगीर समनानी के हाथ में है। यही वजह है कि जब किसी को भी दुनिया में विलायत मिलेगी तो जब तक दोस्ती इधर नहीं है नाम रिकमेंड होएगा ही नहीं, आगे ही नहीं बढ़ेगा। जब शहंशाह तक नहीं जाएगा तो पाओगे क्या? यह है सैयद अशरफ जहांगीर, किसी बाबा का नाम नहीं है। मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी ये अपने वक्त का मुजद्दिद है, ये अपने वक्त का मुफक्किर है, ये अपने वक्त का मुफस्सिर है। ये मामूली जात नहीं। एक तरफ इल्म का दरिया है और दूसरी जानिब विलायत का दरिया, और जब दोनों दरिया एक जगह इकट्ठा हो जाएं तो सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी की शख्सियत बनती है, साथ बनती है, जिसके ताल्लुक से खुद गरीब नवाज फरमाए, मेरे सिलसिले की 6वीं पुश्त में एक जहांगीर पैदा होगा जिससे मेरा सिलसिला पूरी दुनिया में जाएगा। 6वां तो गरीब नवाज के मुरीद और खलीफा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, क्या हुआ काउंटिंग करिए, उनके मुरीद और खलीफा बाबा फरीद गंज शकर, काउंटिंग, उनके मुरीद और खलीफा हजरत महबूब इलाही हजरत सैयद निजामुद्दीन औलिया, उनके मुरीद और खलीफा सिराज अखी आईन हिंद, उनके मुरीद और खलीफा शेख अलाउल हक पंडवी, और उनके मुरीद और खलीफा सैयद अशरफ जहांगीर समनानी 6। तो गरीब नवाज ने फरमाया मेरे सिलसिले में 6वीं पुश्त पर अभी तो पैदा भी नहीं हुए, पैदा भी नहीं हुए, और गौसियत का ऐलान अल्लाह का हबीब बंदा कर रहा है, जो दुनियाए विलायत में हबीब का टाइटल लेकर बैठा हुआ है। वो उस वक्त ऐलान कर रहा है जब मखदूम सिमना अपनी वालदा के शिकम में भी नहीं आए थे। तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अब जरा सोचो, क्या तुम्हें नाज नहीं होना चाहिए कि ऐसी जात के उर्स करने और उस उर्स की तकरीब में शिरकत की रब तबारक व तआला ने तुम्हें सआदत बख्शी है, तो क्या उसका शुक्र अदा नहीं करोगे? क्या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम तेरे महबूब बंदे की उर्स की तकरीब में हमें तूने शरीक होने का मौका अता फरमाया। ऐ अल्लाह, हम तेरा हजार हजार बार शुक्र अदा करते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि तू इस उर्स की तकरीब की जो बरकतें नाजिल कर रहा है उसमें हम सब का हिस्सा भी रखेगा, हम सब के दामनों में अपनी रहमतों की बारिश फरमाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इन्हीं जुमलों के साथ मैं रुखसत होता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।